online class from High Star and North City Public Secondary School and College. This is our bio class of class 8 and 9 and chapter number 6, enzyme, and our lecture number is 2. Uses of enzymes. Many enzymes are used commercially in industries. The most common industries are paper industries to get cellulose from paper making, food industry for making bakery products and pizza, brewing industry for conversion of sugar into alcohol, biodetergents used to remove different types of stains. कमर्शियली इंडस्ट्रीज़ के तौर पर भी एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं और बहुत कॉमन जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली है पेपर इंडस्ट्रीज़, जिसमें हम पेपर बनाने के लिए भी एंजाइम्स को यूज़ करते हैं। दूसरी है फूड इंडस्ट्रीज़, यानी एंजाइम्स को बेकरी की मसनूआत और पिज़्ज़ा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ब्यूइंग इंडस्ट्रीज़, इस सनत में शुगर को अल्कोहल में तब्दील करने वाले एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं। और बायो डिटर्जेंट्स, मुख्तलिफ किस्म के निशानात को ख़त्म करने के लिए भी एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इन नेचर ऑर्गेनिज्म adjust the condition of their enzymes to produce an optimum rate of reaction where necessary, or they may have enzymes which are adapted to function well in extreme condition where they live. नेचर में जानदार जो है अपने अंदर के हालात को इस तरह तरतीब देते हैं कि उनमें एंजाइम बेहतर अंदाज से काम कर सके या फिर सख्त हालात में भी काम कर सकें अगर जानदार सख्त गर्मी या सख्त सर्दी में रहते हैं। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन फैक्टर्स नंबर 1 है, आपको फैक्टर बताया गया। पहला फैक्टर है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। It has been shown experimentally that if the amount of enzyme is kept constant and the substrate concentration is then gradually increased, the reaction velocity will increase until it reaches the maximum, after which further increase in the substrate concentration produces no significant change in the reaction rate. In other words, enzyme molecules are saturated with substrate. The excess substrate molecules cannot react until the substrate already bound to the enzyme has reacted and been released or being released without reacting. सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यानी कि ये एक्सपेरिमेंटली ये बात नोट की गई है कि अगर एंजाइम की मिकदार को यकसा रखा जाए और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाया जाए तो केमिकल रिएक्शन की रफ्तार में भी इजाफा होता रहेगा जब तक वो अपनी ऑप्टिमम रफ्तार तक ना पहुंच जाए। इसके बाद सबस्ट्रेट के जो कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट में इजाफे से एंजाइम का कारकर्दगी यानी रफ्तार में कोई इजाफा नहीं होगा। दूसरे लफ्ज़ों में एंजाइम्स के मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के साथ सेटशुदा हालत में यानी सैचुरेटेड हालत में भी मौजूद हो जाते हैं। इजाफी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इस वक्त तक रिएक्शन नहीं करते जब तक कि सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम्स मौजूद ना हो। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। द प्रोटीन नेचर of the enzyme makes them extremely sensitive to the thermal changes. Enzyme activity occurs within a narrow range of temperature compared to ordinary chemical reaction. Enzyme catalyzed by randomly colliding with the substrate molecules, increasing temperature and increased collision will also increase the rate of reaction, forming more product. However, increasing temperature also increases in vibrations and the structure of enzyme is lost, that is denatured enzyme. These changes decreases the rate of enzyme action or it may cease completely. In summary, as the temperature increases initially, the rate of reaction will increase because of increased kinetic energy. However, the effect of bond breaking will become greater and greater, and the rate of reaction will begin to decrease as shown in the diagram. टेम्परेचर में किस तरह इफेक्ट होता है कि जो एंजाइम्स हैं उनकी जो मॉलिक्यूलर बड़े सेंसिटिव होते हैं ये एंजाइम, प्रोटीन नेचर के होते हैं ये,
और टेम्परेचर बड़े सेंसिटिव होते हैं। एंजाइम की कारकर्दगी खास टेम्परेचर पर कम हदूद में कारगर होती है, जबकि दूसरे केमिकल रिएक्शन के मुकाबले में ये हद बहुत कम होती है। टेम्परेचर के बढ़ने से मॉलिक्यूल्स आपस में टकराव की रफ्तार टेम्परेचर के बढ़ने से मॉलिक्यूल्स के आपस में टकराव की रफ्तार भी तेज़ हो जाती है। इस तरह एंजाइम के रिएक्शन मुमकिन बनाते हैं। जब कोलिजन की रफ्तार में इजाफा होता है तो नई प्रोडक्ट जल्दी और ज़्यादा तैयार होती है, जबकि टेम्परेचर में इजाफा मॉलिक्यूल्स के कोलिजन का भी सबब बनता है, जिसके नतीजे में एंजाइम की साख तबाह हो जाती है, यानी एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं। इन तब्दीलियों के नतीजे में एंजाइम की कारकर्दगी रफ्तार कम हो जाती है या फिर मुकम्मल तौर पर रुक जाती है। आप ये देख रहे हैं ग्राफ के अंदर आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर जब तक टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एक ख़ास रफ्तार तक रिएक्शन तेज़ हो रहा है, उसके बाद ये रिएक्शन कम हो रहा है और एंजाइम जो है वो डीनेचर हो रहा है। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की जो कोलिजन है वो ज़्यादा हो रही है, इस तरीके से एंजाइम डीनेचर हो जाता है। और हम ग्राफ में देख रहे हैं कि उसके बाद ग्राफ नीचे आ जाता है। इसके बाद थर्ड फैक्टर है हमारा pH enzymes are also sensitive to pH due to their protein nature. All enzymes work at their maximum rate at narrow range of pH. The point where the enzyme is most active is known as optimum pH. For example, pepsin works at low pH, that it is highly acidic, while trypsin work at high pH, that is it is basic. Most enzymes work at neutral pH 7.4. Small changes in pH above and below the optimum do not cause a permanent change to the enzyme, since the bonds can be deformed. However, the extreme changes in pH can cause enzymes to denature and permanently lose their function. pH में एंजाइम्स जो हैं अपनी बनावट की वजह से, यानी प्रोटीन नेचर की वजह से pH से भी हसास होता है। तमाम एंजाइम अपनी ख़ास pH की हद में रह के काम करते हैं। जिस pH पर कोई एंजाइम सबसे ज़्यादा रफ्तारी से काम करता है उसको हम ऑप्टिमम यानी कि मुनासिब या बेहतरीन ऑप्टिमम pH कहते हैं। मिसाल के तौर पर पेप्सिन कम pH पे काम करने वाला एंजाइम है जो कि एसिडिक होता है, जबकि ट्रिप्सिन ज़्यादा pH पे काम करने वाला एंजाइम है जो कि बेसिक होता है। बहुत से एंजाइम्स जो हैं वो न्यूट्रल होते हैं और pH पर काम करते हैं। मसलन उसको हम बेहतरीन कहते हैं। pH में थोड़ी सी तब्दीली कोई देर बाद तब्दीली नहीं होती, इसलिए इस पर बॉन्ड्स दोबारा बन जाते हैं, लेकिन pH में ज़्यादा तब्दीली एंजाइम की साख को तब्दील कर सकती है। इस तरह इसकी कारकर्दगी मुस्तकिल तौर पर तबाह भी हो सकती है। यहाँ भी ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ है। ये फैक्टर है, फैक्टर ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कि एंजाइम की तरीक़ाकार, एंजाइम की जो एंजाइम एक्शन है उसका तरीक़ाकार। इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।